60 इंटू log 2, ये कैलकुलेट करो. Okay, you can do this one. I think we have done that one before only. Now we'll do ये प्रॉब्लम आपने कंप्लीट किया. डायमेंशंस, यूनिट्स. यस, नो रिप्लाई फ्रॉम एनीबॉडी. 4.1 खत्म किया सभी ने. मंडे तक मेरे को असाइनमेंट कंप्लीट होना चाहिए. 4.1 कंप्लीट हो गया. यूनिट्स आई थिंक हैव डन, आई थिंक 1-2 प्रॉब्लम्स हैव डन इन द लास्ट क्लास इटसेल्फ. बाकी का प्रॉब्लम्स आपको करना है. एक सेकेंड वन नहीं किया, अब सेकेंड वन करेंगे बेटा. 4.2 करेंगे अभी. Now यहाँ पर एक्चुअली what they are asking, reaction is given, rate also given, the rate law also given here. Observe here, the rate law also given here. K is also given. Now calculate the initial rate of the reaction when concentration of A is equal to 0.1, concentration of B is equal to 0.2. Calculate the rate of reaction after A is reduced to 0.06. Okay, you have to calculate the rate of reaction after A is reduced to 0.06 and calculate the initial rate of the reaction also we have to calculate. तो देखो rate उसने दिया ऐसा, देखो rate is equal to क्या दिया इसने, K into concentration of A into concentration of B whole square. आपको क्या कैलकुलेट करना है, इनिशियल रेट फाइंड आउट करना है आपको. तो बताओ रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के वैल्यू कितना दिया इसने, ये ले लो 2.0 into 10 to the power of -6. This is the K value. Now concentration of A कितना है बेटा, what is the concentration of A? 0.1 mole per liter. 0.1. concentration of B 0.2. 0.2. कितना लेना है, टू द पावर ऑफ 2 लेना है. सो मैं तो सब्स्टिट्यूट किया, आप तो आंसर फाइंड आउट करना है. तो ऑल ऑफ यू टेक दिस वन बेटा, टेक दिस वन एंड डू दिस वन. मेरे को आंसर बताओ अभी, रेट कितना, आंसर बताओ अभी, जल्दी करना है आपको. आंसर सही आंसर बताना है आपको. टू इंटू 10 to the power of -6, 10 to the power of -8 into 10 to the power of -9. कितना, 8 into 10 to the power of 9. 4 to the 8, -6 -7 कितना आया बेटा, 8 into 10 to the power of -9. This is the answer. First answer is completed. Calculate the initial rate तो complete हो गया बेटा. Now after what they are asking here, calculate the rate of the, same again आपको rate calculate करना है. ये फार्मूला लेना है आपको, सेम फार्मूला आपको लेना है. But what they are saying, when A is reduced to 0.0, if A is reduced to 0.06, then what will be the rate of the reaction? If A is reduced to, isn't it, 0.06, अब क्या हो जाएगा. अब देखो बेटा, मैं फिर से इसको इरेज करता हूं ताकि आपको इजी हो जाएगा. फिर से लिखता हूं इसको. अब देखो मैं फिर से फार्मूला लिखता हूं. इसके पहले एक काम करेंगे बेटा. नाउ रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस्ड टू 0.06. यहां पर आपको कॉन्सेंट्रेशन ये कितना लेना है बेटा, क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज रिड्यूस्ड टू 0.06. अब आपको 0.1 नहीं लेना है, आपको कितना लेना है, 0.06 लेना है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना लेना है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
कोई बता सकते हैं अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना लेना है? यस, देखो, इफ आई टेक हियर 2 moles, okay, how many moles of B involved beta? If I take 2 moles of A, 1 mole of B will be used here, right? 1 mole of B we can use. Now here how much is participating beta? How much reactant is participated? Because initially it is 0.1 beta. Initially it is 0.1. Now it is reduced to how much here? 0.1 से, देखो 0.1 से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये 0.1 से 0.06 रिड्यूस हो गया, तो कितना पार्टिसिपेट हुआ बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये कितना अमाउंट पार्टिसिपेट किया बेटा? यस, 0.04. वेरी गुड, 0.0. ओनली चैतन्य इज सेइंग 0.04 इज पार्टिसिपेटेड. नाउ बी में कितना हो जाएगा अभी देखो, इफ बी 0.04. यस बेटा, 0.16 है. नहीं, एक मिनट, यहां पर देखो, इफ इट टेक्स प्लेस 2 mole, which one A, how much B will be reacted? 1 mole, that means half will react. Now tell me, if 0.04 is mole is reacting from A side, how much will be from B side? ये बताओ मेरे को. 0.02. 0.02 आधा हो जाएगा. देखो 2 moles of A reacting with 1 mole of B, that means if it is 2 mole it will be 1 mole. If it is 1 mole it will be 0.5 mole, correct? If it is 0.04 mole it will be 0.02 mole, correct or not? Understood or not? Yes sir. Now tell me, what is the initial concentration of B beta? Concentration of B initial कितना है बेटा? 0.2 0.2 है ना, 0.20 ले लो ऐसा. कितना रिएक्टेंट इसमें पार्टिसिपेट हुआ? हाउ मच इट इज पार्टिसिपेटेड? 0.02. कितना बाकी रहता है अभी कॉन्सेंट्रेशन? अभी कितना बाकी है बेटा? 0.18. अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज 0.06, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इक्वल टू व्हाट? 0.18. isn't it? This is the thing actually, right? Now अब सब्स्टिट्यूट करो बेटा, सेम फार्मूला क्या है बेटा? रेट इक्वल टू के. यही फार्मूला, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी होल स्क्वायर. के इक्वल टू सेम लेने आपको 2 इंटू 10 to the power of -6. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना लेना है बेटा? रिड्यूस कितना कहां तक हो जाएगा? 0.06. देखो 0.06. नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ये कितना लेना है आपको? 0.18 लेना है, होल टू द पावर ऑफ 2. अब बताओ मेरे को आंसर बताओ. 2 इंटू 10 to the power of -6 इंटू 0.06 इंटू 18. आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, रेट इक्वल टू 2 इंटू 10 to the power of -6. इसको क्या लिख सकते हैं आप? 6 इंटू 10 to the power of -2. और इसको कैसे लिख सकते हैं? 18 इंटू 18 लिखो, 18 इंटू 18 इंटू 10 to the power of -4. अब कैलकुलेट करो, बोलो आंसर मेरे को. So 2.36 into 10 power -12. ओके, 2 सभी को सेम आंसर आया बेटा? चेक करो एक बार, सेम आंसर आया. So 3.9 into 10 is to -9. एक मिनट मैं भी करता हूँ. 2 इंटू 6, 18 इंटू 18, आंसर आ रहा है 3.8 इंटू 10 to the power of 1 2 3 इंटू ये क्या? -4 -6 -12, तो -9 आ रहा है बेटा. 3.8 इंटू 10 to the power of -9. ये आंसर किसी को आया? Yes. Yes sir. Yes, sir. ये आंसर आया ना. देखो ये ऐसा आपको करना है क्वेश्चन. ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी रहते, लॉन्ग आंसर में आएगा ऐसा क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी रहेगा. तो क्वेश्चन आप समझ आए तो आपको आसान हो जाएगा. डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको करना है ना. तो ये ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो रहे हैं, अगर किसी को अंडरस्टैंड नहीं हुए तो फिर से आप यूट्यूब में देख सकते हैं.
नेक्स्ट 4.3 भी देखेंगे बेटा, 4.3 प्रॉब्लम देखेंगे एक बार। 4.3 में क्या हो रहा है बेटा, फिर से मैं इसको डिलीट करता हूं। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मैंने ऑलरेडी बोला, वन ऑफ द एग्जांपल फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, heterogeneous catalysis gases reactions are nothing but zero order reaction, in which decomposition of ammonia, we have taken example, it's a zero order reaction. What is the rate of production of nitrogen and hydrogen if K value is 2.5? K value बोला इसने 2.5 बेटा। अभी आपको प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन करना है। सो मैंने फर्स्ट क्लास में शायद, फर्स्ट और सेकेंड क्लास में शायद, सेकेंड क्लास में एक्सप्रेशन आपको बोला, एक रेट इक्वेशन लिखने के लिए एक एक्सप्रेशन बोला बेटा मैंने। किसी को याद है बेटा वो फॉर्मूला है ना? अगर 2 है तो 1/2 लेना है, 1/2 है तो 2 लेना है। मैं फिर से एक बार एक क्वेश्चन रिएक्शन लिखकर आपको बोलता हूं बेटा। यहां पर अमोनिया डिकम्पोजिशन है ना, डिकम्पोजिशन नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इसको बैलेंस करने के लिए मैं इधर 2 मोल्स लेता हूं, यहां पर 3/6, यहां पर 3 लेता हूं। अब इसको रेट इक्वेशन कैसे लिखते बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेंट माइनस लिखना है आपका, है ना? 2 है तो कितना लिखना है बेटा? 2 को कितना लिखना है? 1/2. 1/2, वेरी गुड। डी चेंज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल, सबको इक्वल टू करना है। अब प्रोडक्ट्स है तो प्लस ले सकते हैं आप, डी यहां पर कुछ लेने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 है, dt इज इक्वल टू, ना यहां पर भी प्लस ले सकते हैं आप। 3 को क्या लेना है बेटा? 3 को 1/3. 1/3, वेरी गुड। dH2/dt, दिस इज इक्वल टू व्हाट? ऑलवेज k बेटा, ऑलवेज, बिकॉज यार कुछ जिले के लेने की जरूरत नहीं क्योंकि टू द पावर ऑफ क्या होता है बेटा? 0, 0 इज नथिंग बट व्हाट? समथिंग टू द पावर ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। तो लिखने की जरूरत नहीं आपको, k लिखना है। तो k वैल्यू दिया है ना बेटा, यहां पर देखो k वैल्यू इज गिवन हियर। k वैल्यू कितना दिया इसने? k वैल्यू इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, ये तो वैल्यू दिया इसने। अब आपको क्या करना है? व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन? हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को दोनों को इक्वल ले लेंगे, ये दोनों के, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे बेटा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। दे आर आस्किंग व्हाट? प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये पूछ रहे हैं कितना नाइट्रोजन फॉर्म हो जाएगा। तो हमको अमोनिया नहीं चाहिए, हम ए इक्वेशन ले लेंगे, इसमें ए इक्वेशन ले लेंगे। अब बताओ बेटा, डी नाइट्रोजन, देखो बेस्ड अपॉन दिस the production of nitrogen, the dN2 dt, change the concentration of nitrogen in the product side is equal to कितना लेना है? k, k is equal to क्या हो जाएगा? 2.5 into 10 to the power of -4। एक तो हो गया मोल पर लीटर, ये तो हो गया आंसर। हाफ ऑफ द आंसर इज कंप्लीटेड। अब देखो, अभी आपको क्या करना है? नेक्स्ट कौन सा प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है बेटा? अभी नेक्स्ट H2 सर। H2, ये दोनों की इक्वल करो अभी, ये दोनों को इक्वल करो, नहीं ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों की इक्वल करो, ये दोनों। अब देखो मैं फिर से लिखता हूं बेटा, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन DH2 डिवाइडेड बाय dt इनटू 3k, शैल आई राइट लाइक दिस? Yes, ये 3 में इधर भेज दिया बेटा क्योंकि मैं ये दोनों को इक्वल कर रहा हूं। तो आपको क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, इसको कर दो। 2.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 7.5 इंटू 10 पावर ऑफ -4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप फिर से कर दो बेटा नीटली। आप नोटबुक ले लो, होमवर्क नोटबुक नहीं तो क्लास वर्क में किसी में लिखो, क्वेश्चन लिखो, डाटा लिखो और ये लिखो, है ना? ये भी हो गया बेटा। 4.4 decomposition of dimethyl ether leads to formation of methane, hydrogen, carbon monoxide. Rate is given. The rate of reaction followed by increase in the pressure in closed vessels. So the rate can be also expressed in terms of partial pressure.
if the pressure is measured in the bar time minutes, then what are the units पूछ रहे बेटा, units पूछ रहे, rate और rate constant का units they are asking. ये आप कर सकते हैं ना बेटा. So what is the formula we have to do बेटा? Rate constant के लिए, rate constant का units calculate करने के लिए what is the formula? Anybody knows? मोल पर लीटर सर होल ब्रैकेट में 1 माइनस n very पर good. सेकेंड. मोल का ऊपर क्या लेना है? 1 माइनस एन लेना है. लीटर का ऊपर n माइनस 1. और ये तो कंपल्सरी. अब बोलो ऑर्डर कितना है बेटा? ऑर्डर व्हाट इज ऑर्डर? एन वैल्यू कब बोलो बेटा? एन वैल्यू कितना है बेटा? ये देखकर बताओ मेरे को. एनीबॉडी व्हाट इज एन वैल्यू? ऊपर जो पावर में रहते हैं ना वो लेना है आपको. अगर 2 है तो ऐड करो, एक ही है तो ले लो 3/2. अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो, n प्लेस में सब्स्टिट्यूट करो. दैट मीन्स व्हाट? मोल 1 माइनस 3/2 लीटर 3/2 माइनस 1 पर सेकेंड. आपको यूनिट्स आएगा. ये कंप्लीट करो. 2 इंटू माइनस 3/2 isn't it? ऐसा करो, आपको एक आंसर आएगा. वो आंसर, दैट आंसर विल बी यूनिट. व्हाट अबाउट द रेट? देखो बेटा, रेट इज ऑलवेज सेम ओनली. यू टेक फॉर द जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, द रेट विल बी कॉमन. इसके लिए आपको कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं. रेट को आप एक ही यूनिट लेते बेटा. व्हाट इज दैट? dx बाय देन dr बाय dt. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर, है ना. टाइम का यूनिट्स क्या हो जाएगा? सेकेंड्स. यहां पर लेकर आ जाओ. इसका यूनिट्स ऑलवेज मोल, लीटर एंड सेकेंड. ये हो जाएगा. दिस विल बी फॉर ऑल जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इवन फ्रैक्शन ऑर्डर. For all the cases, the rate units will be same only better. Only for rate constant units will be changed by using this formula. है ना. ये माइनस में आएगा बेटा, मोल में माइनस आएगा. ये 2 माइनस, ये हाफ हो 3, 2 इंटू 1 माइनस 2. सो आपको हाफ आएगा यहाँ पर. देखो ऐसा, इसको ये तो सेम आएगा. नेक्स्ट 4.5 देखो बेटा, मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. किसी को पता है बेटा? मेंशन द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. So concentration of reactants. Yes. Temperature, Catalyst. Okay. Surface area of reactant. Today only we'll discuss that one. Effect of temperature आज स्टार्ट करता हूं बेटा. उसमें आप डिस्कस करेंगे 4.5. अभी डिस्कस करेंगे. अब ले लेंगे 4.6 ले लेंगे अभी. 4.6 ऐसा क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं बेटा. 4.6 जैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ रहे हैं. व्हाट इज दैट? ए रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट. हाउ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड एंड रिड्यूस्ड. मैं इजीली बताऊंगा बेटा. देखो ये सेकेंड ऑर्डर है ना बेटा. आप ऐसा लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के इंटू, एक ही रिएक्टेंट है. सो मैं लेता हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. पावर कितना लेना है बेटा? अभी 2 लेना है आपको. 2 लेना है आपको. अब क्या करना है इसको? व्हाट दे आर सेइंग, हाउ द रेट विल बी अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेट. ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया बेटा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में किया शायद. उसमें 9 टाइम्स आ गया आपको, मेरे को याद है. 9 टाइम्स, 3 टाइम्स है तो 9 टाइम्स हो जाएगा. यहां पर डबल हो जाए. अब आपको क्या करना है बेटा? रेट इज इक्वल टू के. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये कितना हो गया? डबल. मीन्स व्हाट? 2 टाइम्स. डबल का मतलब 2 टाइम्स हो जाए. पावर तो 2, तो आपको आंसर क्या आएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा. द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स. राइट. सेकेंड आप कर सकते हैं ना बेटा? एनीबॉडी? Yes, sir. 1/4. Yes, sir. 1/4. Right? You do this one as a homework beta. You complete as a homework. Don't say like that. You do even though if you know the answer also, take the question and do one, because now it is okay beta. Now it is very simple. Once exams, when you preparing for examination, no, it will be very difficult. If you make an answer by using like this steps, by following the steps, if you make a note, sir, then it will be easy. Even when you are preparing for examination, it will be easy for you, right? 4.7 व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कॉन्ट. ये तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने स्टार्ट नहीं किया बेटा. अभी स्टार्ट करता हूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. बाद में एक रिमेनिंग क्वेश्चंस आल्सो विल डिस्कस. ओके, सो विल डू नाउ हियर इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर. नाउ
Just a minute. Open. Now देखो बेटा, what are the factors which are affecting the rate of the chemical reaction? आपने अभी आप ही बताया, क्वेश्चन एक आया ना इसमें. One is concentration of reactant. अगर reaction is in terms of gaseous molecules, you need to take what? Pressure, right? Pressure आप कब लेते pressure आप? If the reactants are what? In gaseous state. If the reaction is in gaseous state, then you take what? Pressure. If the reactant is in aqueous state, then you take what? Concentration, right? Second factor, nature of the reactant. ये भी हमने discuss किया. If the reactants are in ionic nature, if the reactants are ionic compounds, then the rate of the reaction is very fast. If the reactants are covalent compounds, isn't it? The rate of the reaction is slow. This is also we discussed in the previous classes only. टेम्परेचर आज डिस्कस करेंगे बेटा. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या हो जाएगा अरिहीनेस इक्वेशन में डिस्कस करेंगे. और फोर्थ फैक्टर लाइट है और फिफ्थ फैक्टर कैटलिस्ट. लाइट तो हम नहीं डिस्कस करेंगे इधर. कैटलिस्ट इज द लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर अस, राइट? विल नाउ टेक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेशर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इसको लेने की जरूरत नहीं है बेटा, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया. नेचर ऑफ द रिएक्टेंट ऐसा भी ले सकते बेटा. सरफेस एरिया देखो, इस दोनों में सरफेस एरिया किसमें ज्यादा है बेटा? दोनों पे. विच इज हैविंग लार्ज सरफेस? सर पाउडर. सेकंड वन मींस पाउडर इज हैविंग व्हाट? मोर सरफेस बेटा. दिस इज हैविंग लेस सरफेस. देखो एवरीथिंग इज एक्सपोज्ड टू द एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज एक्सपोज्ड. ये में इस पे जो अंदर है ना इंटीरियर, द इंटीरियर पार्ट इज नॉट एक्सपोज्ड टू द एनवायरनमेंट. दिस इज व्हाट? मोर. बिकॉज if you make a substance into powder instead of taking as a raw mass, isn't it, as a stone like that, so always the powder will have more surface area, isn't it? Yes, sir. Now we will see what temperature. Now देखो बेटा, अगर आप चाय बनाए तो without temperature can you make a tea बेटा? Is it possible? नो सर. No. तो आपको हीट करना है ना. Similarly, if you want to perform a chemical reaction, some reactions even does not require temperature. Mostly, the reaction does not require any temperature, but some reactions will be there. When you increase in temperature, the rate of the reaction becomes double better for every 10 degrees Celsius. For example, if you increase 10 degrees Celsius, the rate of the reaction becomes double. Let me see this one now. So this is a reaction beta. This is a reaction. You are heating this one, है ना? आप इसको heating कर रहे हैं बेटा. Now इसको heating करने के बाद क्या हो जाएगा? उसमें kinetic energy also increases. Because of the increase in the kinetic energy क्या हो जाएगा? Collisions भी ज्यादा हो जाएगा. इसमें ज्यादा collisions होते हैं. इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? Isn't it? More collisions are successful at high temperature than at low temperature. For example, आप 30 degrees Celsius, generally the reaction is taking place. When you increase 10 degrees Celsius, now the temperature become 40 degrees Celsius. The number of collisions here what more? Here what here? More collisions will take place. ताकि आपको reaction जल्दी हो जाएगा. In comparison with the low temperature. Now what they are saying here, the reaction, the rate of reaction is almost getting double for every 10 degrees Celsius when you rise in temperature. Okay, this is the very important thing for us. Isn't it? For example, R2 is equal to 2 into R1. When, for example, R2 मतलब मैं लेता हूं यहाँ पर 30 डिग्रीज लेता हूं बेटा. यहाँ पर कितना लेता हूं? नहीं, सॉरी, 40 डिग्री सेल्सियस लेता हूं. यहाँ पर कितना लेना है मेरे को? 30 डिग्री सेल्सियस.
सो कितना इंक्रीज हो गया, मैंने कितना इंक्रीज किया बेटा, 10 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया इसका, डबल हो गया, देखो 40 डबल। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। देखो ये फॉर्मूला आप ऐसा लिख सकते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट हायर टेम्परेचर divided by lower temperature, where the difference is what, 10 degrees Celsius. And this is what getting how much better, how much you are getting, 2 you are getting temperature. If it is 10 degrees Celsius, it becomes double, means 2 you are getting. Now temperature dependence of rate of chemical reaction can be explained on the basis of Arrhenius equation. अभी आपको Arrhenius equation पढ़ना है, based upon Arrhenius equation. Now what is this Arrhenius equation? He is the actually Arrhenius, Svante Arrhenius. Now he proposed an equation like this: K is equal to A into e to the power of minus E A by R. Now आप अब देखो इसको हम एक एक ले लेंगे, व्हाट इज के, व्हाट इज ए। कोई नहीं पूछ सकते ये इक्वेशन कैसे आया हमको, why we got this equation, nobody asked, because it is we have taken directly this equation which is given by the Arrhenius. तो इसको डेरिवेशन करने के लिए तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस रहेगा, वो सिलेबस में हमको नहीं है, how we got the equation. So simple we see, we have to integrate and develop an equation by using this simple equation बेटा. now देखो k ऑलरेडी आपको पता है बेटा, k is what here, rate constant. okay, ये means what here, Arrhenius factor बोलते हैं बेटा. A is nothing but what, capital A, that is equal to Arrhenius factor, and EA is equal to what, activation energy. देखो बेटा, this is what EA is, very very important for us, activation energy. R equal to what, a gas constant you can take as 8.314 बेटा. okay, gas constant can be taken 8.314 joules, because we are using energy, no, so energy in terms of joule में लेते हैं आप, so 8.314 लेना है आपको. next, T equal to already you know temperature, है ना, A is equal to Arrhenius factor. so this is the things actually we are using: K, activation energy, gas constant, temperature, Arrhenius factor. अब आपको क्या करना है देखेंगे. अब देखो, ये को आप बोल सकते हैं Arrhenius फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एक्चुअली, राइट. अब देखेंगे एक बार लॉगरिथम ले लेंगे बेटा, दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, अप्लाइंग द log on both side, और k becomes here what, log k, a becomes what, log a. अब आप ऑलरेडी आपको पता है ना बेटा, log mx is equal to what is the formula, anybody knows? So log m plus log x. So same मैंने लिया, correct or not? log mx, log m plus log a, ऐसा लिया. now log k, अब देखो बेटा, log e to the power of minus ea by rt, ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, minus ea by rt हो जाएगा, है ना. लॉगरिथम ऑफ एक्सपोनेंशियल विल बिकम्स कैंसिल बेटा, ये a भी दोनों कैंसिल हो जाएगा. अब आपको आएगा log k is equal to log a माइनस EA by RT आएगा, isn't it? बिकॉज वो कैंसिल हो जाएगा, ये log यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा. मैं क्या करता हूँ, इस पे ये माइनस EA by RT इस तरफ लाता हूँ बेटा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इस तरफ लाता हूँ, एंड दिस isn't it, 1/t यहाँ पर लेता हूँ, थोड़ा इसको इससे सेपरेट करता हूँ बेटा, EA by RT को मैं ऐसा लेता हूँ, ओके, प्लस log A. इज इट करेक्ट और नॉट बेटा, व्हाट आई हैव रिटन इज करेक्ट? Correct, sir. है ना, समझ आ गया ना. मैं क्या क्या किया, इसको ये दोनों को कैंसिल किया बेटा, log ये दोनों कैंसिल हो गया, है ना. कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस EA by RT ऐसा आएगा. दिस माइनस EA by RT में फर्स्ट ले रहा हूं, बाद में ये प्लस इधर ले रहा हूं, ये इधर ले रहा हूं. नाउ दिस इक्वेशन लुक्स अगेन y is equal to mx plus c. इट लुक्स व्हाट, y एक्सिस में क्या लेना है, log k लेना है. नेक्स्ट ये log k ये लेना है. नेक्स्ट m मींस व्हाट, स्लोप, स्लोप में क्या लेना है आपको, माइनस EA by R लेना है. स्लोप m इज इक्वल टू स्लोप, ये लेना है आपको. नेक्स्ट x एक्सिस में क्या लेना है आपको, 1/t लेना है, 1/t x एक्सिस. नाउ दिस विल बी इंटरसेप्ट, c मींस व्हाट, इंटरसेप्ट, दैट इज मतलब log a लेना है आपको, कांस्टेंट वैल्यू. अब ग्राफ ले लेंगे एक बार, इससे ग्राफ ले लेंगे,
y एक्सिस में मैंने log के लिया है ना. नेक्स्ट x एक्सिस में आई हैव टेकन 1/2. तो नेगेटिव ग्राफ आएगा और पॉजिटिव ग्राफ आएगा बेटा. यहां पर डाउनवर्ड से डाउनवर्ड और अपवर्ड स्ट्रेट लाइन आएगा और डाउनवर्ड आएगा आपको, क्योंकि नेगेटिव है ना. स्लोप क्या है आपको -EA/RT, तो आपको डाउनवर्ड साइड आएगा स्ट्रेट लाइन. स्लोप देखो बेटा, स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा -EA/R है ना. दिस इज द ग्राफ वी आर गोइंग टू गेट. अब बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें ग्राफ ड्रा करने में? नो सर. अब बताओ, इफ दे आस्क एक्टिवेशन एनर्जी व्हाट विल बी द फॉर्मूला? माइनस स्लोप इंटू आर. आर वैल्यू कितना है बेटा 8.314. आंसर अब आएगा एक्टिवेशन एनर्जी आएगा, है ना. स्लोप तो नेगेटिव हो जाएगा तो आपको पॉजिटिव आएगा आंसर. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखो बेटा, और ये फॉर्मूला नहीं तो ये फॉर्मूला याद रखो. isn't it? ये है फॉर्मूला. एक्टिवेशन इज इक्वल टू -R into slope. This formula also we are having some problems also over this problem. अब बताओ, अब एक ग्राफ लेते बेटा. आपको मेरे को मैं एक्सप्लेन करता हूं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ये देखेंगे एक बार. व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या हो जाएगा ये देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज EA मींस व्हाट. देखो, दिस इज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट बेटा, है ना. एंड इफ reactant reaches here, if reactant reaches this energy, then only it will convert into product. Okay, now the difference between the threshold energy and also what here energy of the reactant, that can be taken as what activation energy. For example, देखो बेटा, इस the energy of the reactant देखो बेटा, रिएक्शन होने के पहले रिएक्टेंट इज हैविंग सडन एनर्जी कितना है 100 जूल्स है बेटा, 100 joules per mole. Now if the reactant reaches what 150 joules, then only they will convert into product. For example, you are having what some number of reactants are there, in which 50% reactants got 150 joules of energy out of 100 molecules. Only 50 got 150 joule energy. Then only out of 100, only 50 will convert into product. Remaining 50 never convert into product. What I mean to say, whatever the reactant molecules which gets the threshold energy, then they convert into what? Product. Now बताओ बेटा, threshold energy और transition state जो एनर्जी प्रोसेस करने के लिए पाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए बेटा रिएक्टेंट के लिए? बताओ मेरे को भी. एक्टिवेशन एनर्जी कितना बेटा, कितना चाहिए? ये डाटा देकर बताओ मेरे को. 50 जूल. 50 joules. Now tell me what is the meaning of activation energy? Threshold energy TE minus energy of the reactant. Threshold energy कितना है बेटा 150. Energy of actual reactant is what 100. So 50 is what here activation energy. 50 joules is activation energy. So this is the thing actually we are going to see. Our remaining topic we'll discuss later beta. Already we have completed this one. So we'll do one thing beta. Next topic we'll discuss already in 2 no? We'll discuss tomorrow class, right? इसके लिए और 10-15 मिनट लगेगा, तो ये मैं कल एक्सप्लेन करता हूँ बेटा. तो और एक चीज, द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द रेड का ये मैं कल बताऊंगा. नाउ इज इट पॉसिबल टू डू 4.8? ट्राई करो बेटा 4.8 और 4.9 आज का होमवर्क बेटा. ये मैं पूछता हूं कल, आपको आंसर देना है 4.8 का और 4.9 का आंसर देना है आपको. ये ट्राई करो 4.8 and 4. Remaining we'll do next class. The remaining problems we'll do in next class. But you take 4.8 and 4.9 as a homework. Just wait, we'll take attendance now.
Abhishek Sharma, Present, sir. Abhishek Y, Present, sir. Aditya, absent. Anshu, Present, sir. Manoj, Present, sir. Anushka, Present, sir. Apurva, Present, sir. Atharva, Present, sir. Atul Rawat, Present, sir. Ayush, Ayush absent है. Balmukund, Present, sir. Chaitanya, Present, sir. Deepta, Present, sir. Jnaneshwari, Present, sir. Gulabi, Present, sir. Kalpesh, Present, sir. Kaushal, Yes, sir. Kunal, Manoj, Present, sir. Ashif, Present, sir. Ojas, Present, sir. Omkar PC, absent. The Patil Dhanushree, Present, sir. Tadamesh, Present, sir. Raghav, Present, sir. Rahul, Present, sir. Raj, absent. Raj, absent. Ramya, Present, sir. Priya, Present, sir. Rohit, Present, sir. Samiksha, Present, sir. Samruddhi, Present, sir. Sapna, Present, sir. सार्थक. Present, sir. आज पहला क्लास है आज आपका सार्थक. No, sir. बहुत Sir, दिन ये डिवाइस इशू था. डिवाइस इशू इतना दिन फर्स्ट तारीख sir. से फर्स्ट डे फर्स्ट तारीख एब्सेंट, सेकंड एब्सेंट, थर्ड एब्सेंट, फिफ्थ एब्सेंट. इस मंथ में आज का फर्स्ट क्लास है आपका. शशि रंजन, Present, sir. शशिधर, एब्सेंट. शशिधर. स्नेहा, Present, sir. सोनाली, Present, sir. श्रीहरि, Present, sir. सुमित एम. Present, sir. कल एब्सेंट है. सुमित डी, Present, sir. सूरज सी. Present, sir. कल एब्सेंट क्यों बेटा तुम सूरज? कल एब्सेंट है. सूरज यू. Present, sir. त्रियंबक, एब्सेंट. उमेश, Present, sir. वैष्णवी एन, Present, sir. वैष्णवी जे, एब्सेंट. वामन, एब्सेंट. वेदांत, Present, sir. विशाल, Present, sir. विशाल. Present, sir. यश, एब्सेंट. विनीत. Present, sir. Okay, beta, you can log out now. If you have any questions, you can ask me. Thank you, sir. Thank you, sir.